Assalamu alaikum everyone. Hope so everyone is fine and you have revised two lectures that we have discussed earlier. In today's lecture, we will discuss about uh, HCF, or you can say GCD, and we will discuss about uh, LCM. So first, you should remember the full form of these abbreviations. So this HCF means highest common factor, and GCD means greatest common divisor. It is one and the same thing. इसमें आपको डाउट होने की कोई जरूरत नहीं। अगर एग्जाम में आया फाइंड जीसीडी, आपको HCF ही निकालना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मींस HCF, highest common factor. And second term is that is least common multiple. So in this lecture, we will learn how can we find out HCF of two natural numbers, or we will learn about how can we find out HCF of three natural numbers. So first, you should know its definition, as I have discussed in previous lecture, that for example, we have two numbers. We will take two smaller numbers like that 2 and next number is 4. Now we have to find out the HCF of these two numbers. How can you find out what is meant by HCF? That is highest common factor. What it means that you have to check uh, what is the number which divides both. जो डिवाइड करेगा किसको, 2 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन उससे कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है एक नंबर है वहां पे डेट इज 1, जो 2 को भी डिवाइड करता है, एंड सिमिलरली 1 ये 4 को भी डिवाइड करता है, लेकिन इससे बड़ा कोई और नंबर एग्जिस्ट होता है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा? यस, देयर इज वन मोर नंबर लाइक दैट इफ वी टेक 2 डिवाइड बाय 2 and 4 divided by 2. So 2 is the number which divides 2. 2 is the number which divides 4 as well. So now this will go cancel out here and this will go cancel out here. Now you can check here. It means that this is 1 and this is 2. So इससे बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होगा। किसे? 2 से बड़ा। 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो 2 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है। You should remember this thing in your mind. Okay, similarly you can find out what is meant by LCM. LCM, least common multiple. But there are a number of examples like that. If we take 1 4 2 and 3 4 5, you have to find out the HCF. Is it possible to find out like this? वहां पे कौन सा नंबर है जो 142 को भी डिवाइड करेगा, जो 340 को भी डिवाइड करेगा? उससे कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा। इट इज टू मच डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई देयर इज अ रिजल्ट दैट व्हाट वी कॉल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिससे हम HCF और LCM को इजीली निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज मीन्ड बाय LCM? LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव two numbers 3 and 5. We have to find out the least common multiple. What it means, आप इसका मतलब क्या है? आप 3 का टेबल भी पढ़ो और 5 का टेबल भी पढ़ो, फिर देखो जो पहला वाला नंबर है इन दो टेबल्स में कौन सा फर्स्ट नंबर है जो कॉमन है। I mean to say, just read the table of 3. 3 1 are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18. Just like you can continue. Okay. Now read the table of 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. Okay, 5 4 are 20. Now you can check here. 3 is there, but 3 is not here. 6 is there, but 6 is not there. 9 is there, but 6 is not, 9 is not here. Similar, 12 is here, 12 is not here. You can check 15 is there as well as there. You can check 5 4 or 20, sorry.
5, 4 are 20. You can check. It means that least common multiple of 3 and 5 is 15. I hope so this is clear to you that what is mean to by LCM. This is not the proper way of finding the LCM. It will take too much time. Now I will take some examples by which we learn how can we find out the LCM and HCF. So let's take some examples. So I will start with exercise 1.1. This is class 10th maths, as you already know. The first question is, first I will write down the question here. First question is, find HCF and LCM. Find highest common factor and least common multiple. Sorry, first question is easy, that you can easily find out it. That's you have to factorize the numbers. And this is question number 2. Sorry, this is question number 2. Question number 1 is easy, you can do it. And I will show you one part. Sorry, I will show you one part. Okay, just so I will show you one part of question number 1. Question number 1. I will read its statement. Express each number as product of its prime factors. So first understand the question always. जब भी आपको क्वेश्चन करना होता है, हमेशा के लिए क्वेश्चन को पढ़ो कम से कम 2 बार और सीखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के मुताबिक फिर सिंपलीफाई करो क्वेश्चन को। ये क्या बोलता है, 2-3 नंबर्स, आपको एक नंबर गिवन है, इस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। व्हाट इट मींस, इसका सिंपली मतलब ये है ना, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे यूज करना है। मीन जो गिवन नंबर होगा ये कंपोजिट नंबर होगा। इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, a number is said to be composite number if it has more than 2 factors. In fact मैंने फैक्टर की भी डेफिनेशन डिस्कस की आपके साथ। यू कैन चेक द प्रीवियस 2 लेक्चर्स, वहां से आप समझ सकते हो। लेट्स आई विल टेक एन एग्जांपल हियर 140। इसको हमें क्या करना है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, देखो पहले हमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसको हम फैक्टर ट्री कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या लेना है, 140। और देखो ये तो आसान तभी बनेगा ना ये फैक्टर ट्री बनाना, जब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है। मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, यू कैन इजीली डू इट। पहले मैं थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 हमें क्या कहते हैं। आपको सिंपली एक नंबर, लेट्स सी दिस इज अ नंबर, आपको इसका लास्ट नंबर चेक करना है। इसका लास्ट नंबर, चेक इट्स लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है, 0। नाउ इज दिस 0 इवन, क्या ये 0 इवन है? As I already discussed with you what is meant by even number, what is meant by odd number. I will repeat here. जैसे कि I will write down here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Okay. Now, first I will recall the definition of even number. Even numbers वो numbers होते हैं जिनको 2 divide करता है। आई मीन टू से, अगर हम 2 देखेंगे, 2 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर, यू कैन, क्या 2 को डिवाइड करता है? यस। मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना सर 2 and 2 विल को कैंसिल आउट, आंसर तो वहां पे नेचुरल नंबर ही आएगा। जब आंसर नेचुरल नंबर आएगा इट मींस दैट इसको ये एक फैक्टर है। सिमिलरली जब हम 4 लेंगे, क्या 4 को 2 डिवाइड करता है? व्हाट इट मींस, आपको ऐसे चेक करना है 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 और 2 2 2 और 4, क्या आंसर नेचुरल नंबर आया? यस। इट मींस दैट 2 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ 4। सिमिलरली 6। सो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स।
And similar, you can check 0 is also an even number. How this is an even number? Just check. हम 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे. आपको पता है अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, वहां पे 0 ही आता है हमेशा के लिए. So it means that what? जो 0 है, 0 is 0 is even number. Okay, 0 is an even number. Okay, I hope so this is clear. And what are these are the rest of the numbers? Like that 1 is there, 3 is there, 5 is there. These are called odd numbers. What is meant by odd numbers? The numbers which cannot divide to, the numbers which are not divided by 2. The numbers which are not divided by 2. Just like that you can see. क्या हम 1 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं? Let's just check. 1 divided by 2. क्या वहां पे नेचुरल नंबर आंसर आएगा? नो. इन्हीं नंबर्स को जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. आई होप सो दिस इज क्लियर. ओके, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. So 1 is even, 1 is odd number, 3 is odd number, 5 is odd number. Similarly, you can check their alternate pattern follows there. यानी कि एक को बीच में छोड़ो. अगर 1 ऑड नंबर है ना, 3 भी ऑड नंबर है. अगर 3 ऑड नंबर है ना, 5 भी ऑड नंबर है. अगर 5 ऑड नंबर है ना, तो 6 के बाद क्या आता है? 7 इज ऑड नंबर. ऑल्टरनेट numbers or odd numbers. Now you can check 0 is even number, 0, 2 is even number, 4 is even number, 6 is even number. Like that, similarly you can say 8 is even number. Like you can continue this pattern as well, you can find out. Now मुझे क्या समझाना है आपको? मुझे समझाना है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा, फ्रॉम द राइट साइड, रिमेंबर फ्रॉम द राइट साइड, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से चेक कर रहे हैं. अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा तो हमेशा के लिए रिमेंबर, जितना भी नंबर बड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दे, लाइक दैट दिस. अब सिंपली लास्ट डिजिट चेक करो. इसका लास्ट डिजिट क्या इवन नंबर है? 8 is an even number. Yes, so it means that इस नंबर को anyhow 2 डिवाइड करेगा. This is divisibility test by 2. So it means that हमें यहाँ पे जरूरी 2 से इसको डिवाइड होगा ही होगा. Like that यहाँ पे हम लेंगे 2 7 और 14, 2 0 और 0. देखो क्या करना होता है, मैं आपको हर एक स्टेप समझाऊं. आपको एक डिजिट सिलेक्ट करना है यहाँ पे 1. क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज इट इज लेस देन 2. अब और एक डिजिट इसके साथ सिलेक्ट करो. जिस तरीके से आप कॉमन डिवाइड में करते हैं ना, वैसे यहाँ पे करना है. कोई नया रूल नहीं है. 2 अब 14 बन गया. क्या 14 2 के टेबल में आता है? यस, 2 7 और 14 लिखा. 2 7 और दैट्स वाई. अब बचा क्या यहाँ पे? 0. अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 0 आएगा. 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 आएगा ना. क्लियर? नाउ वंस अगेन यू हैव टू चेक. आपको छोड़ना नहीं है. लास्ट नंबर चेक करो. क्या ये इवन नंबर है? यस, दिस इज एन इवन नंबर. अगर इवन नंबर है तो हमें करना क्या है? तो ऑब्वियसली इस नंबर को 2 से डिवाइड होगा ही होगा. जब इस नंबर को 2 से डिवाइड होगा तो हमें क्या करना है? 2 यहाँ पे लिखना है. देन 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 7 आएगा. इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो आपको क्या लेना है? जो नंबर इससे जस्ट लेस देन है, बट दैट नंबर मस्ट लाई इन द टेबल ऑफ 2. सो जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 और 2, वो तो छोटा है, बहुत छोटा है. 2 2 और 4 वो भी छोटा है. 2 3 और 6 वो भी छोटा है. 2 4 और 8, लेकिन 8 बड़ा है ना, वो हम नहीं ले सकते. तो आपको क्या लेना है? 2 3 और 6. सर यहाँ पे लेकिन 7 है ना. मैंने कहा बोला छोड़ना है वहीं पे? अरे यार, अब वो क्या करना है? हमने 7 में से 6 को यूज किया है. अब बचा कितना? एक, वो आपको यहाँ पे डालना है. Now this will become 10 here. Now 2 is multiplied by what? So the answer is 10. So 2 5 are. अगर आपको ये समझ आएगा ना फैक्टर ट्री कैसे बनाना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो पॉलिनोमियल है ना, यू विल एंजॉय देयर. क्योंकि वहां पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है. फैक्टराइजेशन मेथड तभी आ सकता है ना जब आपको ये फैक्टर ट्री बनाना आएगा. दैट्स व्हाई मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ फैक्टर ट्री कैसे बनाना होता है. नाउ चेक करो. क्या ये 3 के टेबल में आए, 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा. क्यों? जो लास्ट नंबर है ना,
दैट इज ऑड नंबर, ये इवन नंबर नहीं है। लास्ट नंबर कंपलसरी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तभी तो वो 2 के टेबल में आएगा ना। यू गॉट माई पॉइंट नॉट? ओके, इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, डेट इज 3, आपको चेक करें 3 के टेबल में आएगा। सर हमें तो पता ही नहीं ना डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या है। अरे मैं समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे 3 5 लिखना है। जो जो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 में आएगा ना उसको काटो। सर आज तक हमने पढ़ा ना, सिंपली इन नंबर्स को प्लस करो, 3 + 5 होता है 8। क्या सम 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। गुड, वेल डन, इट मीन्स ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली सम ऑफ डिजिट्स, आई मीन टू से 3 + 5 करना है। जब 3 + 5 करेंगे वो तो 8 के बराबर आएगा। हाँ बिल्कुल। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इट मीन दैट ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। श्योर। लेकिन और एक आसान तरीका है, और मतलब फॉर एग्जाम्पल ये नंबर चेक करना है, क्या ये 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स करो तो वहां पे पूरा दिन आपको चले जाएगा इसके साथ। अरे क्या करना है, जो जो 3 के टेबल में है ना उसको काटो। देखो ये है ना 3 के टेबल में, इसको काटो। 5 + 4 = 9, क्या 9 3 के टेबल में है, काटो। और 6 3 के टेबल में है, काटो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 7, ओके 7 7 7, अब देखो यहाँ पे 8 + 1, इससे मैंने 1 लिया, वो कितना होता है 9। दैट मीन्स वो 3 के टेबल में आता है। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 6 बचा है। 6, क्या 6 3 के टेबल में आता है? यस। या ऐड करो इनको, 8 + 7 वो कितना होता है? शाबाश, 8 + 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 3 के टेबल में आता है, कैंसिल करो। यहाँ पे देखो 7 और 3 को प्लस करो आप, सॉरी 7 और 4 को प्लस करो आपस में, वो कितना होता है 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। इट मीन इट इस नंबर को 3 डिवाइड नहीं करेगा। इजिएस्ट वे, थोड़ा एडवांस्ड में कुछ सीखो, इसको हम डिजिटल सम कहते हैं, बहुत काम का है। ठीक है। नाउ ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आया, सर क्या हमें 4 लेना है? नहीं लेना है। रिमेंबर दिस थिंग, 4 से चेक ही नहीं करना है, आपको टाइम जाया नहीं करना है। 4 से क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि जो ये 4 है ना, ये कंपोजिट नंबर है। एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ पे जो हर एक नंबर आएगा ना, हर एक नंबर प्राइम नंबर होगा। सो 4 से हमें चेक ही नहीं करना है। तो बचा क्या, छोड़ो 4 को, आप किस नंबर 5 को लेना है। तो क्या ये नंबर 5 की टेबल में आता है? सर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 समझाओ ना, वो क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है। वो बेचारा सिंपली बोलता है जो लास्ट डिजिट है ना वो चेक करो, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 5 होना चाहिए। जो लास्ट डिजिट है, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 5 होना चाहिए। ठीक है, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर होता तो वो 5 के टेबल में आएगा। सिमिलरली क्या लास्ट डिजिट जो है, क्या यहाँ पे 5 है? यस, इट मीन्स दैट दिस नंबर लाइज इन द टेबल ऑफ 5। सो 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 35 आएगा। 5 7 और 35, and now this 7 is prime number, 7 1 are 7। सो इट मीन्स दैट 140 को हम लिख सकते हैं किसके बराबर? 2 into 2 into 5 into 7, but better is to express this factorization in exponential form, I mean to say in power form। so हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सर 2, आप चेक करो ना यहाँ पे, 2 is multiplied by how many times? 2 times। तो वही पावर ले लो ना, क्या मसला है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। मेरा क्वेश्चन है, जवाब देना आपको। मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं रीजन साथ बोलना, अगर नहीं कर सकते रीजन साथ बोलना। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ठीक है, क्लियर? आई होप सो दिस इज क्लियर कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, now I think that I will take one more part, yes, isn't it?
So second part, that is 156. अब आपको मजा आएगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा ना कंसेप्ट। इसी को कहते हैं ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो, हमें क्या करना है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। 156 यहाँ पे ले लो। अब 2 के टेबल में आएगा ना, आएगा, क्यों आएगा, जो लास्ट नंबर है ना दैट इज इवन नंबर। अब 2 का टेबल पढ़ो यहाँ पे, 2 7 और 14। तो जिससे मल्टीप्लाई करना होता है ना वो नीचे लिखना होता है। अब यहाँ पे लेकिन 15 है ना सर, हाँ मुझे पता है 15 है। यहाँ पे एक बचेगा ना, वो यहाँ पे डाल, ये कितना बना, 16 बना ना। 2 8 और 16। वन सेकेंड, क्या 2 के टेबल में आएगा? यस, क्यों, लास्ट नंबर इवन नंबर है ना सर, इसीलिए आएगा। 2 3 और 6, 1 बचा, 18 बना। 2 9 और 18, क्या ये 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लास्ट नंबर जो है ना वो ऑड नंबर है। अब क्या ये 3 के टेबल में आएगा? आएगा, क्योंकि आपको सम भी नहीं कर रहे। 3 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, हाँ 3 के टेबल में आएगा ना ऑब्वियसली। तो 3 का टेबल हमें पढ़ना है। 3 1 और 3, 3 3 और 9, एंड 13 इज द प्राइम नंबर। 13 1 और सो फिर 156 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 13. So express this in exponential form. Can I write down like this? 2 power 2 into 3 into 13. Is this clear to everyone or not? Okay, let's take one more part. Third part. That is, third part is 3a25. 3a25 कैसे फैक्टराइज करेंगे? एज यू नो, ओके, फैक्टर ट्री बनाना है। फिर 3a25, क्या ये 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो लास्ट नंबर है दैट इज एन इवन नंबर, इसीलिए नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में आएगा, चेक करो। 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? सर सम करेंगे? नहीं करेंगे। अरे थोड़ा सा एडवांस बनो। ओके, 3a25 3 के टेबल में खत्म। ओके, 8 प्लस 2 हो गया, 8 प्लस 2 हो गया 10। वहां पे एक बचा क्योंकि 9 चला गया 3 के टेबल में, एक बचा तो यहाँ पे 6 बना। हाँ 3 के टेबल 5 प्लस 1 is 6, 3 के टेबल में आएगा। जब 3 के टेबल में नहीं आ रहा है ना समझ फिलहाल आप, तो फिर ये करो, तो फिर फिलहाल ये करो, आगे आगे सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सम क्या आएगा। 5 plus 2 is 7, 7 plus 8 is 15, 15 plus 3 is 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? यस, अगर आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या आएगा? 3 1 और 3, 3 2 और 6, दो बचा। रिमेंबर ये क्या बना यहाँ पे? 22। 3 7 और 21, एक बचा, क्या बना? 15। 3 5 और 15। वन सेकेंड। और हमेशा के लिए जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे ना जाते 7 का टेबल चेक करने के लिए। हमेशा के लिए सीक्वेंस फॉलो करो, तभी तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। आई मीन टू से सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है? पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, 4 से चेक ही नहीं करना है, फिर 5 से चेक करो। समझ आ रही बात शायद कि नहीं? क्लियर है? ओके, क्लियर। नाउ हमें चेक करना है क्या ये 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार 2 + 1 is 3, काटो। 7 + 5 is 12, काटो। हाँ 3 के टेबल में आएगा ही आएगा, श्योर 100%। सो नाउ 3 4 और 12, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। अब 3 2 और 6 बचा क्या? एक बचा, ये क्या बनेगा? 15। 3 5 और 15। सो वंस अगेन, क्या 3 के टेबल में आएगा? हाँ चेक करो। 4 + 2 is 6, 6 + 5 is 11, नहीं आएगा। तो किस टेबल में आएगा? 4 से चेक करना है क्या? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 4 is a composite नंबर।
बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पे हर एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। रिमेंबर, स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? नाउ 5 की टेबल में आएगा, यस, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो क्या करेंगे, 5 को 4 से कर सकते हैं? नहीं सर, इतना तो पता है ना अब। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 8 और 40, यहाँ पे बच गए 2, ये बन गए 25। 5 5 और 25 ना। क्या करना है, क्या 5 की टेबल में आएगा? यस, 5 1 और 5, 5 7 और 35, क्योंकि यहाँ पे 3 बचे हैं, 3 को यहाँ पे डालो, ये बन गया 35। नाउ 17 is a prime number, 17 so it means that 3825 can be expressed as, कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो ये किसके बराबर आएगा? 3 is multiplied by how many times? 2 times, तो पावर 2 डालो। तो 5 is multiplied by how many times? 2 times, तो 5 के ऊपर पावर 2 डालो into 17। बस, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, यू शुड रिमेंबर इट। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके, यू शुड रिमेंबर इट हमेशा के लिए, क्योंकि दिस विल हेल्प अस इन व्हाट आई कैन से in finding out the HCF and LCM. I hope so this is clear to everyone. Clear? Sure? Okay. आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, मैं हर एक पार्ट दिखाऊं, ये तो अजीब सा होगा ना कुछ। चलो और एक रैंडमली एक पार्ट लेंगे, ठीक है। दैट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 7429। फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री बनाओ 7429, ठीक है। 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा ना सर, पता है इतना, अब तो पता चला। ओके गुड, क्या? ओके, 3 के टेबल में आएगा, तो 9 चला गया, तो इसमें एक बचा, ये तो इसके साथ मिला, तो चला गया ये 2 नंबर्स। अब 7 नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 4 से चेक ही नहीं करना है। क्या 5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। क्या हम, क्यों, लास्ट डिजिट क्या है, या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। क्या करेंगे, 6 का टेबल से चेक। डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं करना है। क्यों, जो 6 है ना, ये कंपोजिट नंबर है, शाबाश, गुड। अब जो 7 है, 7 से चेक करो, क्या 7 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है सर? हर एक टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसका टेस्ट क्या है? मैं बोलूंगा क्या है, जो लास्ट नंबर है ना, व्हाट इज द लास्ट नंबर, दैट इज 9। इसका डबल ले लो, वो क्या आएगा, 18। अब इस डिजिट के बिना कितने नंबर्स बचे हैं सर? 742 बचा है। 742 को माइनस करो 18 के साथ, बचा क्या? माइनस करना शायद आता है। ओके, 12 माइनस 8 इज 4। ओके, 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3 बचे ना, क्योंकि यहाँ से बाहर हो गए ना एक, 3 माइनस 1 इज 2 एंड देन 7। सर अभी भी डिफिकल्ट है ना, अभी कहाँ बोल सकते 7 के टेबल में आता है कि नहीं। अब क्या करना है, कंटिन्यू प्रोसेस करो ना। अब इसका लास्ट डिजिट सिलेक्ट करो, वो क्या है, 4 है ना, 4 का डबल ले लो, 8 आएगा। अब 4 इंटू 2, आई मीन टू से 4 का डबल मीन्स 4 इंटू 2। ओके, 4 इंटू हो गया 8। अब 8 से माइनस करो, जब 8 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14। 4 तो 4 माइनस 8 तो कर ही नहीं सकते, तो क्या करना है, यहाँ से बाहर 1 करना है, बन गया 14। 14 माइनस 8 6, यहाँ पे क्या बचा, 1। सर अभी भी नहीं कर सकते, क्यों, डिफिकल्ट अभी भी लग रहा है? कोई नहीं, कर सकते हैं ना बाय डूइंग दिस। ओके, व्हाट आई कैन से, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली, बाय द वे। चलो ओके, अब वंस अगेन लास्ट डिजिट ले लो, 6 का डबल ले लो, 12 इससे माइनस कर लो। अरे हम मत गलत कर रहे हैं क्या? हाँ हम गलत कर रहे हैं, यहाँ से हमने गलत किया, बिल्कुल 100% हमने यहाँ पे गलत किया। तब को क्या लेना है, 7 4 लिया हमने, गुड।
लास्ट डिजिट का डबल, फिर उसी को साथ माइनस करना है ना। तो लास्ट डिजिट का डबल क्या था? लास्ट डिजिट का डबल क्या था? सॉरी, ये क्या हुआ? अरे यहाँ तक क्लियर है, हाँ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई शक ही नहीं। ठीक है, तो अब नंबर कौन सा बना? 724 बना। तो लास्ट डिजिट कौन सा है? 4। 4 का डबल ले लो, वो कितना होता है? 8। लेकिन नंबर कितना बचा? 72 बचा ना। ओके, 72 बचा, इसको माइनस कर लो 8 के साथ। तो 12 माइनस 8 इज 4। 6 एज इट इज 64। अब क्या ये 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। समझ आया? समझ आया किस तरीके से डिविजिबल टेस्ट करना? डिविजिबल टेस्ट ऑफ 7। आई विल रिपीट इट, कोई नहीं, बाद में डिवाइड, बाद में रिपीट करेंगे, देखेंगे। ओके, क्या हमें 8 से चेक करना है? नहीं चेक करना है। क्यों नहीं करना है? यू नो व्हाई? यस, हमें नहीं करना है क्योंकि 8 इज अ कंपोजिट नंबर। 9 से चेक करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 9 इज अ कंपोजिट। 10 से करना है? नहीं करना है। 10 इज अ कंपोजिट नंबर। 11 से करना है? यस करना है, लेकिन 11 का टेबल सबसे आसान होता है ना। डू यू नो व्हाई? क्यों? देखो देखो, 11 हमें क्या करना है? 7 4 2 9 डिवाइड बाय 11 किस तरीके से करेंगे? चेक करो ना, यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी है ना। हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस लेना है एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस लेना है। आई मीन टू से सम ऑफ दिस। ओके, आप ले लो। ओके, ये 7 प्लस, ये यहाँ से, ओके यहाँ, सॉरी यहाँ से 9 प्लस, इट इज 9, यस। 9 प्लस 2 इज 11 minus 7 plus 2 is 9. What is 11 minus 11 minus 9 is 2. क्या ये 11 के टेबल में आता है? नहीं आता है। सो 11 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं, आपको क्या करना है? सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस। या तो वो जीरो आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, तभी तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा ही होगा। क्या 12 से चेक करना है? नहीं करना है। क्यों? 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अब चेक करो 13 से। देखो ये कितना अच्छा प्यारा सा पार्ट है। 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, आप चेक करो। सिंपल, यू कैन डू इट। ओके, 15 14 से हमें चेक ही नहीं करना है। 15 से चेक ही नहीं करना है। 16 से चेक ही नहीं करना। आप किससे चेक करना है? 17 के साथ। क्या 17 के टेबल में आएगा? 17 के टेबल में आएगा? यस, 17 के टेबल में आएगा। ओके, दिस इज एक्सेप्शनल हियर। ओके, गुड पार्ट। ओके, वेल डन। इस पार्ट को चेक करने के लिए पेशेंस होनी चाहिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली 17 का टेबल पढ़ना है। लेकिन 17 का टेबल थोड़ी ही पढ़ेंगे। अब करो ना सिंपली 7 4 2 9 डिवाइड बाय 17। तो यू विल गेट 437। 437। क्लियर टू एवरीवन? यस और नॉट? नाउ क्या ये फिर से 17 के टेबल में आएगा? चेक करो। 437 को डिवाइड करो 17 के साथ। नहीं आता है, पॉइंट फॉर्म में आता है। मीन से द आंसर इज 25.70। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें होल नंबर लेना है। तो 7 के बाद 17 के बाद कौन? 18। 18 से हमें चेक ही नहीं करना है। 18 के बाद कौन सा आता है? 19। कम से कम आपको 50 तक प्राइम नंबर से याद होना चाहिए कौन कौन सा प्राइम नंबर है। 19 इज अ प्राइम नंबर। अब 437 को डिवाइड करो 19 के साथ, वहां पे आएगा 23। So up 23 is a prime number. 23 1 or 23. So it means that 7429 can be expressed as, किस तरीके से लिख सकते हैं? 17 into 19 into 23। बस इसमें हर एक के ऊपर पावर 1 1 है। Is this clear to everyone? Oh, I hope so. This is clear. There is doubt, you can ask. There is no issue. You can ask the questions on the in the comment box as well. Okay. नाउ नेक्स्ट पे चले जाएंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम, क्योंकि इसमें यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था जो मैंने दिखाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड HCF and LCM of following numbers, of following pair of integers and verify। और भी हमें एक चीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट वेरीफाई करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। LCM into HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. Product of two numbers. In fact, you have to remember this formula.
Okay, first formula that you need to remember in real numbers. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है इन डिफरेंट फॉर्म्स में. जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 26 एंड 91. पहला वाला पार्ट है 26 एंड 91. अब इनको क्या करना है, 26 का टेबल पढ़ेंगे, 91 का टेबल पढ़ेंगे, अरे यार तो फिर फायदा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज करो. इट मींस दैट वी हैव टू फैक्टराइज बोथ द नंबर्स. हमें 26 को भी फैक्टराइज करना है, 91 को भी फैक्टराइज करना है. कर लो ना, किस चीज का वेट करना है. अब आसान तो बन गया ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक कंसेप्ट एक बार समझो ना, बस आसान. अगर आपने रैंडमली याद किया तो पता ही, तो मेरी आत्मा तुझे हमेशा के लिए सताएगी. ओके, सो नाउ 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट इवन नंबर है. 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 13 1 आर 13 बिकॉज 13 is a prime number. नाउ चेक 2 के टेबल में आएगा, कतन नहीं आएगा क्योंकि वन, जो 1 है डेट इज एन ऑड नंबर. क्या 3 के टेबल में आएगा, 9 + 1 = 10, तो नहीं आएगा. क्या 4 के टेबल में चेक करना है, नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, बिकॉज 4 इज अ कंपोजिट नंबर. 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि लास्ट नंबर या 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए. 6 तो चेक ही नहीं करना है. क्या 7 से चेक करेंगे, हाँ 7 से चेक करेंगे. देखो 9 लास्ट नंबर ले लो, लास्ट नंबर इज 1. इसका डबल ले लो, इसका डबल क्या है 2. अब जो नंबर बचा बचा क्या वहां पे, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 यूज करना है. अब क्या करना है, जो नंबर बचा है, कौन सा नंबर बचा है 9, इसको माइनस कर लो 2 के साथ, वहां पे क्या आएगा आंसर 7. 7 क्या 7 के टेबल में आता है, आता है. तो अगर आता है तो डू, ये 7 के टेबल में आएगा. 7 1 आर 7, बचे 2, 7 3 आर 21. नाउ 13 1 आर 13. दैट्स व्हाई मैंने आपको इसीलिए पहला पार्ट अच्छे से समझाया, ताकि आपको ये बार बार यूज करना है इन पॉलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समटाइम्स इन एपी. okay, number of times you have to use this concept. okay, so it means that 26 को हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 13. एंड 91 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 7 × 13. आप चेक करो, हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91. वो किसके बराबर आएगा. ऐसे नहीं चेक करने सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है इसीलिए नहीं आएगा, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है तो 13 हमें लेना है. देखो क्या करना है आपको, पहले ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर ढूंढना है. कॉमन 13 है, कॉमन 13 है. फिर आपको चेक करना है पावर्स एज वेल, पावर्स को भी चेक करना है. हम आगे जाके नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आएगा इससे कैसे हमें निकालना है. यहाँ पे इजी है, दैट्स वाई. तो आपको क्या देखना है, जिस कॉमन फैक्टर के ऊपर लोवेस्ट पावर होगा वही एचसीएफ होता है. आई मीन इसके ऊपर लोवेस्ट पावर क्या है 1. तो या आप ये 13 ले लो या ये 13 ले लो. ओके, 13 इज इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, सारे फैक्टर्स ले लो. 2 है, 13 है, 7 है, लिया मैंने सारे फैक्टर्स. वो नहीं एक को स्किप करना है ट्रेडिशनल वे, जस्ट लीव इट. ट्रेडिशनल वे को छोड़ो ना, आप कुछ नया कुछ सीखो ना. कॉमन हर एक फैक्टर को ले लो, जितने भी फैक्टर्स, और इनका हाईएस्ट पावर चेक करो, किस जिस पे हाईएस्ट फैक्ट, जिस पे हाईएस्ट पावर होगा ना वो ले लो. इस पे 2 के ऊपर 1 है तो लिया मैंने, 13 के ऊपर 1 है तो लिया है, क्योंकि अदरवाइज वरना 13 कितने हैं, 2 है ना. मुझे लेना है वो वाला जिसपे हाईएस्ट पावर होगा. एच शेप में वो वाला लेना है जिसमें लोवेस्ट पावर होगा. हाँ, वी विल टेक द नंबर ऑफ एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, आप 7 है, 7 के ऊपर पावर 1 है तो इनको मल्टीप्लाई करो. ठीक है, व्हाट यू विल गेट, 2 × 13 26, 26 × 7 करो तो व्हाट यू विल गेट, 26 × 7 you will get 182. so 182 क्या है, हाईएस्ट, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल.
अब हमें वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, एज पर द क्वेश्चन। क्या करना है वेरीफाई? हमें करना है वेरिफिकेशन में, क्या करना है हमें? LCM इंटू HCF। जरा किसके बराबर आएगा? LCM किसके बराबर है? 182। डालो 182 यहाँ पे। देखो LCM की जगह अपना भी LCM, फिर इंटू इंटू वापस आएगा। ACF की जगह में क्या डालना है? 13 डालो। इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 182 इंटू 13 करो, यू विल गेट 2366। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर आएगा? अरे यार, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में जो गिवन नंबर्स है, कौन कौन सा नंबर है गिवन? एक तो 26 है, दूसरा तो 91 है। इनको मल्टीप्लाई करो, 26 इंटू 91, व्हाट यू विल गेट? जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2366। क्या आंसर बराबर आया? यहाँ पे भी 2366 आया, यहाँ पे भी क्या आया? 2366। तो हम कह सकते हैं ना, अब क्या कह सकते हैं? LCM इंटू HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers. Is this clear to everyone? How can we find out LCM and HCF of any two numbers? Of any two numbers, you can easily find out. But you should remember the concept here. If I take one more part here, which part? I think that third part I will take, not second part. Second part is easy, that I think. Okay, third part is 336 and 54। देखो जो पार्ट टू है ना, वो आपका होमवर्क। जब आप खुद कर लोगे ना कुछ तो समझ आएगा। अगर आपने खुद कुछ नहीं किया ना, तो ऐसे देखते रहो, कुछ नहीं समझ आएगा। You have to use copy as well as pen in order to do the practice in maths. It's compulsory. Okay, let's factorize this. Okay, 336, because चाहे एज अ प्रोडक्ट हम प्राइम फैक्टर्स करना है, एज अ प्रोडक्ट एज LCM HCF निकालना, तो फैक्टराइज करना ही करना है। नव क्या आएगा यार? तो जरा फैक्टराइज करो, क्या 2 के टेबल में आएगा? आएगा, श्योरली आएगा। क्यों? लास्ट में ये बने 2 1 और 2 बचा एक, ये बन गया 13। 2 6 और 12 बचा एक, ये बन गया 16। 2 8 और 16। मैंने इसीलिए फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझाया, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 2 8 और 16, 2 4 are 8. Now 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है? 3 7 are 21, 7 1 are 7। अब बार बार ही नहीं बोलूंगा, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा नहीं, यहाँ मैंने समझाया नंबर ऑफ टाइम्स। 2 के टेबल में आएगा, लास्ट नंबर इवन है। 2 2 are 4, 2 7 are 14, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। So it means that 336 को हम लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं? 2 is multiplied by how many times? 1 2 3 4। 1 2 3 4 and 3 into 7। First do one work, express this in exponential form, in I mean to say power form में। अब यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4, 2 रेज्ड पावर 4 इंटू 3 एक ही बार मल्टीप्लाई, और 7 भी एक ही बार मल्टीप्लाई में। अब 54 यहाँ पे ले लो। 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या हम ऐसे कर सकते हैं ना? 2 इंटू 3 इज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। नाउ आपको क्या निकालना है? HCF किस किस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर?
336 और 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो वो तो कहानी चली गई ना आपको, ये एक 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 बार ले लो कॉमन फैक्टर्स। हाँ नहीं, देखो चेक करो कॉमन फैक्टर कौन कौन से। यहाँ पे टू है क्या? यहाँ पे टू है क्या? यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा जो मेरे कहने का मतलब है। टू फिलहाल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्या यहाँ पे थ्री है? क्या यहाँ पे थ्री है? बिल्कुल सही है, 100%, नो डाउट। अब लिखो पहले कॉमन फैक्टर्स को, लिखा मैंने टू और थ्री को। अब देखो इन टू टूज में से किसको लोवेस्ट पावर है? क्या लोवेस्ट पावर फोर है या वन है? वन है, तो इसीलिए हमें टू पावर वन वन लेना है। इन दो थ्रीज में लोवेस्ट पावर किसके ऊपर है? इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, यार यार इसके ऊपर है, इसीलिए मैंने थ्री पावर वन लिया। तो डेट इज थ्री, टू, टू थ्री आर सिक्स। क्लियर? आई होप सो दिस इज क्लियर। And LCM, least common multiple of 3, 3, 6 and 5, 4. This is equal to what? अब चेक क्या करना है? मैंने बोला सब फैक्टर्स ले लो जितने भी फैक्टर्स है। टू है, थ्री है, सेवन है, तो लिया, टू भी लिया, थ्री भी लिया, सेवन भी लिया। अब कोई फैक्टर बचा जो नहीं है, जो हमने नहीं लिखा? यहाँ पे भी है टू थ्री, वो तो ऑलरेडी लिख कर है ना। अब देखो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? क्या हाईएस्ट पावर यहाँ पे है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर है ना, तो ये लेना है टू पावर फोर। अब हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है ना, ले लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर टू पावर थ्री। अब इंटू क्या है, सेवन के ऊपर पावर वन। अब लिखो, इट डज नॉट मीन जो बच्चे कर रहे हैं ना, टू इंटू फोर इज एट। इसका मतलब है टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। टू रेस्ट पावर फोर का मतलब है टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करो, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। थ्री रेस्ट पावर थ्री का मतलब है थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इंटू सेवन। टू टू आर फोर, टू आर एट, टू आर 16, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री आर 27 इंटू सेवन। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 16 इंटू 27 इंटू सेवन, दैट इज इक्वल टू 3024। क्लियर? ओके, लास्ट स्टेप बचा वेरिफिकेशन। ओके, हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन क्या हमें करना है? HCF इंटू LCM। सर वहां पे लिखा आपने LCM इंटू HCF, अरे यार थ्री इंटू टू, टू इंटू थ्री, क्या इसमें कोई फर्क है? बराबर है ना कि नहीं? बराबर है। ओके, चाहे HCF इंटू LCM लिखो, LCM इंटू HCM लिखो, कोई फर्क नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा, इसको गारंटी है। नाउ HCF किसके बराबर आया? सिक्स। LCM किसके बराबर आया? 3024। सिक्स इंटू 3024 किसके बराबर आएगा? 3024, that is equal to 18144। ओके, एंड अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो किसके बराबर आएगा? जरा टू नंबर चेक करो, कौन कौन सा नंबर था? 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, इनको मल्टीप्लाई करो, 18144। क्या आंसर सेम आया? जस्ट चेक, यहाँ पे आंसर क्या आया? 18144। यहाँ पे आंसर क्या आया? 18144। क्या आंसर सेम आया? अगर आंसर तो सेम आया ना, हेंस वी कैन से देयरफॉर HCF into LCM is equal to product of two numbers, product of two numbers। अब आपने सीखा कैसे हम दो नंबर्स को LCM और HCF निकाल सकते हैं। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक दैट। अगर आपको टू फोर
12 है। आपको बोलना है इन नंबर्स का एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है एलसीएम। आप ऐसे नहीं करो ना आप, टू, फिर ऐसे है ना वो, 2 4, ये कुछ एडवांस्ड है, दैट्स वाई मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे नहीं करना, टू फिर 2 1 2 2 2 6 फिर 2 से फिर से 2 1 2 3 फिर 3 से फिर से लाइक दैट, इस तरीके से आप जो करते हो कॉमन में, तो 2 2 4 4 3 12। आपको क्या करना है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर देखो वो कौन सा है, 12 है कि नहीं। हाँ है। अब इस नंबर को चेक करो, क्या इसको 2 डिवाइड करता है, यस करता है। क्या इसको 4 डिवाइड करता है, यस। यही तो एलसीएम होगा, खत्म। वैसे 3 4 6, क्या 6 को 3 डिवाइड करता है, क्या 4 करता है, नहीं करता। तो क्या करेंगे इस टाइम, 6 का टेबल पढ़ो। 6 1 6, 6 2 12। अब ये नंबर सिलेक्ट करो, क्या इसको 3 डिवाइड करता है, क्या इसको 4 डिवाइड करता है, तो दैट मींस 12 इज द एलसीएम। बट दिस मेथड वर्क्स ऑन स्मॉलर नंबर्स, क्योंकि अगर बड़ा नंबर होगा जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से अगर होगा 144 और 18, ये मुश्किल है ना, इजी नहीं है ना 144 का टेबल पढ़ना है, डिफिकल्ट है ना वो। ठीक है, दैट्स वाई। तो इस चीज का ख्याल रखना है, जैसे कि सर जो 2 नंबर्स थे, कौन कौन सा नंबर था, 336 एंड 54। ये 306 का टेबल हम थोड़ी ही पढ़ेंगे, अरे यार ये तो फिर डिफिकल्ट बनेगा। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड you have enjoyed this session, and in next class we will continue with this exercise, and we will do the rest of the questions. एंड इसमें जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, डेट इज इरेशनलिटी प्रूव करना है। मजा आएगा, क्या मजा आएगा वो प्रूव करने में। वाह, मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है, मतलब गारंटी है, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है वो। ओके, कोई उसमें इशू नहीं है। तो थैंक यू, आपने ये लेक्चर सुना है, आपने लेक्चर अटेम्प्ट किया है, थैंक यू फॉर दिस, and request from my side from first time, and kindly share this video with your friends, and subscribe my channel. Thank you for your patient listening. Thank you.